ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا حکومت میں شامل نہ ہونے کا اعلان، مسلم لیگ نون کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت، شہباز شریف کو ووٹ دینے کے سوال پر کہا ہم حکومتی اتحادی نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تابعدار نہیں ہیں۔ مولانا نے نتائج مسترد کرتے ہوئے دھمکی دی ہے، کہا ہے کہ لگتا ہے اب فیصلے ایوان نہیں میدان میں ہوں گے، جھنجھلاٹ میں سابق اتحادیوں پر بھی برس پڑے، کہا جو سمجھتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی وہ عیش کریں۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے، اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہو، لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں، تحریک چلائیں، کارکن تیار ہیں۔ مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ اللہ شہباز شریف کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کسی کے تابعدار نہیں، کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں، انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی، آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بدترین شکست کے بعد مولانا فضل الرحمان کا پھر اسٹیبلشمنٹ پر حملہ، بغیر ثبوت کہا الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا، اسٹیبلشمنٹ الیکشن کو شفاف سمجھتی ہے تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا، یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہمیں عالمی قوتوں کے دباؤ پر ہرایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان تو ہار گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں، کا معنی یہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو۔ لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو چکا تھا، گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا آپ جیت گئے۔ میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے، فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم حکومت میں فوج کا دفاع کرتے رہے، انتخابات میں بدترین شکست کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر رکھ لیا۔ پاکستان کو معاشی بحران کا شکار بنایا جا رہا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اگر چاہتی ہے کہ ملک کو طاقتور اور توانا بنائے، ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہماری فوج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہماری بیوروکریسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو اپنی ڈگر پر لانے اور ان کی خواہشات کے مطابق پاکستان کی ریاست کو تشکیل دینے کے لیے ان کا ہم پہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش نہیں ہو رہے، مریم نواز کی وضاحت، کہتی ہیں وزارت عظمیٰ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاست چھوڑتی ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں لکھا ہے اگلے 5 سال نواز شریف وفاق اور پنجاب حکومت کی سرپرستی کریں گے، شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی اور حکم کے پابند ہیں۔ شہباز شریف نے نواز شریف سے ہاتھ کر دیا، بلا کر ذلیل کرا دیا۔ رہنما پی ٹی آئی پرویز الہی کی عدالت پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، پرویز الہی کا کہنا تھا نواز شریف کا رہا سا بھرم بھی خاک میں مل گیا، اب عوام سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، الیکشن میں عوام نے لاڈلوں کو مسترد کر دیا، پی ٹی آئی مینڈیٹ پر لاڈلوں کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے، چھاپوں اور گرفتاریوں سے ہراساں کیا گیا، پھر بھی زندہ باد کا نعرہ لگا، پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ اور سیٹیں دینے پر عوام کا شکریہ، عوامی مینڈیٹ سے خالی کمزور حکومت سے مسائل بڑھیں گے، معیشت کی بہتری کے لیے بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بنانا ہوگا۔ نواز شریف کو ساتھیوں نے زمینی حقائق نہیں بتائے، نواز شریف نے لندن سے آ کر محسوس کیا اتنی سپورٹ نہیں ہے۔ نون لیگ کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ ہوں گے، شہباز شریف کا میثاق جمہوریت والا تجربہ 16 ماہ میں ناکام ہوا۔ وہ لندن سے آنے سے پہلے ایڈوائزرز وغیرہ ارد گرد لوگ تھے، انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی کو صحیح نہیں بتائی تھی، بعد میں آ کے لیٹر انہوں نے ریئلائز کیا کہ اتنی زبردست سپورٹ نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پاپولیرٹی گراف گر رہا ہے، دوسری طرف آپ کیسے کہہ رہے تھے کہ ہم بڑی سیٹیں لے جائیں گے؟ کیا محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان کا فرسٹ چوائس اسحاق ڈار صاحب ہوں گے؟ میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب ہی آئیں گے فائنانس میں۔ 16 مہینے کا تجربہ اتنا ناکام ہوا تھا کہ ساتھ بیٹھ کے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے،
नवाज शरीफ को साथियों ने जमीनी हकाइक नहीं बताए। नवाज शरीफ ने लंदन से आकर महसूस किया इतनी सपोर्ट नहीं है। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो इसाक डार वजीर खजाना होंगे। आसिफ जरदारी की तरफ से गुज़िश्ता रात राब्ता किया गया। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। पीटीआई रहनुमा ने कहा पैगाम दिया गया हमारी तरजीह नून लीग नहीं तहरीक इंसाफ है। अपनी निशस्तें वापस ले लें, एतराज नहीं करूंगा। कल बानी पीटीआई से मुलाकात में आगाह करूंगा। शोएब शाहीन कहते हैं हम सबसे बातचीत पर तैयार हैं, हमारा मैंडेट माना जाए। 12 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। दरमियानी लोगों के जरिए पार्टी के जो अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, रिया रफीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हमने डिस्कशन की। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे। हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई। खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ दिया है। जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते। ये जो डेवलपमेंट है, कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी, तमाम हकाइक उनके नोटिस में लाऊंगा। हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, मगर जो हमारा मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, वो उनको वापस करते तो संजीदा लोगों से करते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज किसी से राबता नहीं किया। चेयरमैन ने नून लीग को वोट देने का वाज़ेह ऐलान किया है। गैर संजीदा रहनुमाओं के बयानात पर तरजीह न दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं नून लीग को कहना चाहती है कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। पहले आपने अवाम का पैसा लूटा और अब मैंडेट लूटना चाहते हैं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, अब कौम के वोट को इज्जत दें। लाहौर में अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा बानी पीटीआई के नाम पर वोट लेने वालों को खबरदार करती हूं, वोट बेचा तो कौम माफ नहीं करेगी। जेल के अंदर और बाहर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में बुलाए जाने का इम्कान है। नौ मुंतखब अरकान के नोटिफिकेशंस 20 फरवरी तक मुकम्मल होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ममलिकत कौमी असम्बली इजलास तलब करेंगे। इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे और 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। पहले रोज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इंतखाब के बाद वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। सदर मुमलिकत हमें हुकूमत बनाने की दावत दें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं 136 के जादुई नंबर से थोड़ा सा पीछे हैं। हम ख्याल जमात से मिलकर मखसूस निशिस्तों का मसला भी हल हो जाएगा। पीटीआई पार्लियामान में है लेकिन एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। माजी में भी पार्लियामान से नहीं निकलना चाहिए। हमें दावत दें हुकूमत बनाने की। फॉर्म 45 जो इशूज हैं वो अगर हल होते हैं, शादी का इशू अगर सेटल होता है, रिजर्व सीट मिलेंगी, कुछ ऐसे आजाद भी हमारे साथ मिल जाए, किसी जमात के रुकन नहीं है। 136 का मैजिकल नंबर है जिससे तो हम बहुत ही थोड़ा पीछे हैं। पंजाब में भी बनाएंगे, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में होगी। माजी में भी हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। एजाजुल हक ने कहा किसी से जाती लड़ाई नहीं है, नजरियाती इख्तलाफात हैं। चौधरी साहब ने कहा था हमें चाहिए एक ग्रुप में रहें। जो हालात से गुजर रहे हैं उसकी आपको ज़्यादा पता है। हमसे भी उनको दुरुस्त करने के लिए हम अपनी तमाम जो हमारी वर्ड हो उन चीज़ों को भूल कर हम कर रहे हैं। मुल्क है इस वक्त बड़ी मुश्किल मराहल से गुजर रहा है। मुत्तहिद होकर सबको आगे चलना चाहिए और अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के मुफाद के लिए सोचना चाहिए। तहरीक इंसाफ वालों ने भी आपसे भी राब्ता किया है? मेरे से बातचीत हुई है, राब्ता भी हुआ है, मुलाकात नहीं हुई। कराची में 7 साल के बच्चे को गला काटकर सड़क पर फेंक दिया गया। घर की बेल बजने पर बच्चा बाहर गया और उसके बाद से लापता हो गया। की बेल बजी, आबान वापस न आया, उसकी गला कटी लाश मिली। सदमे से वालिद की हालत गैर हो गई। घर की बेल बजी, वो नीचे उतरे और उसके बाद वो पता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पहुंचे तो हमारा ही बच्चा है
इतनी बेदर्दी से उसको मतलब गला काट के मार गए। पुलिस ने बताया नामालूम अफराद आबान को शदीद जख्मी हालत में कार्डियो अस्पताल के पीछे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। ये अहाता जो है कराची कार्डियो अस्पताल जो है उसके बैक साइड पर है। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। टीमें हमने रवाना की, हमने कैमरे वालों की, और 2 टीमें हमने रवाना कर दी कैमरे वालों की। एम्बुलेंस पहुंची तो उस वक्त बच्चा जो है जिंदा था। बासी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की तो रास्ते में जो है बच्चा दम तोड़ गया था। बच्चे की उम्र तकरीबन कोई 7 साल है। आबान के घर वालों का कहना है किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पुलिस आबान के कातिल ढूंढे। किसी से कोई दुश्मनी है ना कोई चीज है, उसके अलावा भी फिर ये सारी चीजें हो रही हैं। और बाकी है कि एक्शन लेने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन भरपूर एक्शन होना चाहिए इस चीज पर, वरना हम भी खामोश नहीं है। हम भी वर्क कर रहे हैं अपना, हम ढूंढेंगे उसको जिस तरह भी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला 7 साल के आबान की मौत शहरक कटने से हुई। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। गाड़ी बेचने के बहाने मरी से कसूर बुलाकर नौजवान यरगमाल। डाकुओं ने 2 नौजवान भाइयों की रिहाई के लिए तावान मांग लिया। गाड़ी लेने कसूर जाने वाले शफकत सती और उवैस सती डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। फेसबुक पर गाड़ी का इश्तहार देखकर मरी के नौजवान कसूर पहुंचे। मुगवी के वालिद ने बताया, कसूर पहुंचने पर दरिया किनारे गाड़ी दिखाने बुलाया। दोनों भाई वहां पहुंचे तो उनके मोबाइल बंद हो गए। अगवाकारों की कॉल आई और 2.5 करोड़ तावान का मुतालबा किया। सेवन शरीफ में 2 मुर्गों को हवालात में बंद कर दिया गया। लॉकअप में बंद मुर्गे मुसलसल अजाने दे रहे हैं। पुलिस का कहना है मुर्गों की लड़ाई के दौरान 2 मुलजिम और मुर्गे पकड़े गए। मुलजिमों को तो अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया, मुर्गे अभी तक लॉकअप में हैं। SHO का कहना है मुर्गों को खिला खिला कर थक गए। मालिकान से गुजारिश है कि अदालत में दरखास्त देकर मुर्गे रिहा करा लें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। हुक्म दिया तौहीन मजहब केस की मजीद इंक्वायरी की जाए। तफ्तीश SP खुद करे। यकीनी बनाए मजहब जाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो। पुलिस तौहीन मजहब के मुकदमे संजीदगी से ले एक तस्वीर की बुनियाद पर तौहीन मजहब का केस बना दिया। हम इस किस्म के मुकदमों से थक चुके हैं। इस्लामाबाद में कोई महफूज नहीं। बगैर वारंट क्या पुलिस किसी के घर में दाखिल हो सकती है? SSP से सवाल किया। आपके घर कोई बगैर वारंट जाकर तलाशी ले सकता है? बगैर वारंट किसी के घर दाखिले पर 5 साल की सजा है। आज वैलेंटाइन डे है, माफी डे। शरीक मुलजिम पेश न होने पर परवेज इलाही के वकील राना इंतजार की अदालत से इस्तदा। अदालत ने कहा आप तो फूल दे आए होंगे, यहाँ का क्या बनेगा? पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की एंटी करप्शन कोर्ट में समाअत। चौधरी परवेज इलाही को अदालत लाया गया। शरीक मुलजिम अब्दुल्ला पेश न हुए। अदालत की बरहमी पर वकील ने कहा मुलजिम को शदीद बुखार है, आज की हाजिरी से माफी दे दें। अदालत ने कहा मुलजिम की बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करें वरना जमानत मंसूख कर देंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पाक बहरिया की छठी हंगोर क्लास आबदोज की तैयारी का आगाज। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। हंगोर क्लास आबदोजें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लेस की जाएंगी। कौमी जहाज और आबदोज साजी की सनत को तकवियत देना नेवल हेडक्वार्टर्स की अव्वलीन तरजीह करार। आबदोज तैयारी में ताउन पर सरबरा पाक बहरिया ने चाइना शिप बिल्डिंग कंपनी का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।